Hello everyone. Now let's see next part in your division pteridophytes. We have seen the structure of sporophyte in the pteridophytes. Here in pteridophytes we have seen that they are again moist. They also grow in again moist and shady places. But some are also having a capacity to grow in sandy soil or desert like condition. But they need water for their fertilization. Hence their growth is also limited and restricted to a particular area. These are the first vascular cryptogams. These are having true roots, true stem and true leaves on their sporophyte. These plants they are very important as per the soil binders. उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम लास्ट में देख ही लेंगे. आपको एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन दी हुई है. बट दे इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स. This sporophytic generation, let's start again, revise it and then we will see gametophytic generation and its classes and importance. दो ही लेक्चर का पार्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं है. It includes a sporophytic generation which is dominant and sporophyte is always diploid, free living, green and it has well developed structure, that is your root, stem and leaves. तो हमने नेफ्रोलेपिस का स्ट्रक्चर देखे थे. नेफ्रोलेपिस को इस तरीके से पत्तियां थी, ट्रू लीव्स थे, ट्रू स्टेम था उसको. ओके राइट, याद आ रहा है क्या? नेफ्रोलेपिस का आपको एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड दोनों में स्ट्रक्चर दिया है. एनसीईआरटी आपको फोटो दी है नेफ्रोलेपिस की. दे ग्रो विद द हेल्प ऑफ रूट्स. ओके, दे आर अटैच्ड टू सॉइल और सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ रूट्स. स्टेम इज देयर, a thin stem may be there or a thick stem may be there. Then it bears leaves. Leaves are of two types: microphylls, they are small sized leaves as in case of Selaginella, or macrophylls, large sized leaves as in case of Salvinia. Salvinia बड़े पत्ते रहेंगे उसके, जबकि Selaginella के छोटे छोटे पत्ते रहते हैं. These are normal leaves which are made for photosynthesis. There are some special leaves which bear sporangia. They bear sporangia. These leaves are called sporophylls. These are the special leaves. They bear sporangia and sporangia will produce, these are the circular sporangia which produce spores by meiosis. So sporangia will produce spores by meiosis in spore mother cell. इसके अंदर स्पोर मदर सेल रहेंगी, इसके अंदर मियोसिस होगा और फिर उसके अंदर टेट्राड ऑफ स्पोर टेट्राड तैयार होगा. ओके, एंड दैट स्पोर्स दे विल जर्मिनेट. स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. ओके, दे विल जर्मिनेट. ऑन जर्मिनेशन दे विल फॉर्म गैमेटोफाइट. हमने यहां तक देखा था, right? So normally sporophyte is having this structure. It will be having sporangia present on either leaves called as sporophylls, or in case of Equisetum we have seen that these sporangia are arranged or aggregated in the form of cone shaped structure known as strobilus or cone. अब ये क्या है? ये भी स्पोरेंजिया है, लेकिन वो सब एक जगह गुच्छे के जैसा एक बंच में जमा होगा. यहाँ पे वो पत्तियों के पीछे है नेफ्रोलेपिस वगैरह में, लेकिन हॉर्स्टेल्स में क्या रहता जनरली वैसे एक ऊपर एक कोन जैसा आता, भुट्टे के जैसा, अपने मक्के के जैसा, कॉर्न के जैसा रहेगा. या फिर इधर है तो पत्तियों के पीछे ब्लैक कलर के रहेंगे, ब्राउन कलर की पत्तियां रहेंगी, उसके पीछे छुपाए रहेंगे. सो दीज लीव्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स. और अगर वैसा रहा तो स्ट्रोबिलस बोलेंगे या कोन बोलेंगे. दोनों में स्पोरेंजियम ही है. स्पोरेंजियम आर दी, it is the sac in which spores are produced, and spores are always produced from spore mother cell by meiosis, and these spores will be always haploid. वो भी वही रहेंगे. Okay, and they will germinate to form your gamete. हमारे यहाँ तक हो गया था पार्ट. ओके, अब ये जो डिप्लॉइड पार्ट है, देखो ये पूरा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो ये भी डिप्लॉइड ही रहेगा, ये भी सब डिप्लॉइड रहेंगे. लेकिन यहाँ से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा. अब यहाँ से तुम्हारा गैमेटोफाइटिक स्टेज शुरू हो जाएगा. सो स्पोर व्हेन इट विल फॉल ऑन व्हाट सुटेबल सरफेस, favorable conditions, when it will get, so at that time it will form a prothallus. Pro मतलब सिंपल, थैलस मतलब एक इसमें कोई रूट स्टेम लीव्स लाइक की कोई स्ट्रक्चर है. थैलस किसको बोलते हैं? द प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स.
which is not differentiated into well defined parts. तो एक ऐसा ग्रीन कलर का ऐसा एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा. सो दिस इज कॉल्ड प्रोथैलस. इट विल बी फ्री लिविंग, इट विल बी फ्री लिविंग green, that is photosynthetic. It will be free living and green, and it will be also haploid. It will be also haploid. This prothallus, which is developed from your spore, so this prothallus will then produce your male and female sex organs, that is antheridium and archegonium. इसके ऊपर अब तैयार होंगे antheridium और archegonium. Okay, that antheridium or archegonium, they will be either produced on same plant or they will be produced on different plant body. So monoecious dioecious condition यहाँ पे भी रहेंगी. हम इमेजिन करते हैं monoecious condition means what, यहाँ पे तुम्हारा antheridium भी है और यहाँ पे तुम्हारा ऐसा थोड़ा सा archegonium भी. This is your antheridium and this is archegonium. Okay, antheridium will produce your male gametes, that are your sperms. Okay, थोड़ा सा इधर निकालता ना, अपने को पूरा स्पेस यूज करना है. सो प्रोथैलस से बनेगा. ओके, दिस इज योर antheridium, that is your male sex organ. अपन हमेशा मेल सेक्स ऑर्गन को क्या नाम देते हैं, एंथेरिडियम या एंथेरिडियोफोर. उसके अंदर रहती है एंथेरिडियम और इधर रहेगा आर्चिगोनियम. आर्चिगोनियम, दैट इज योर फीमेल सेक्स ऑर्गन. फीमेल सेक्स ऑर्गन. सो मेल ऑर्गन विल प्रोड्यूस स्पर्म्स. दे आर आल्सो हैप्लॉइड, क्योंकि देखो ये पूरी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है. प्रोथैलस हैप्लॉइड है, तो इसमें माइटोसिस होगा और माइटोसिस से गैमेट्स तैयार होंगे. ओके, और इससे बनेगा एग सेल या फिर फीमेल गैमेट. इट विल बी आल्सो हैप्लॉइड. सो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैप्लॉइड रहेंगे बिकॉज योर स्पोर इज हैप्लॉइड, और स्पोर के आगे जो भी तैयार होगा सब माइटोसिस से ही बनेगा, किसी में मियोसिस होने वाला नहीं है. सो सारे स्ट्रक्चर्स जो डेवलप होंगे वो हैप्लॉइड ही रहेंगे. आपको एमसीक्यू में पूछते हैं, इसके लिए बता रहा हूं ये आपको एमसीक्यू में पूछते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड. आपको क्या देंगे, ये दे देंगे मैक्रोफिल, मैक्रोफिल, स्पोरोफिल, प्रोथैलस. तो ये तो सब डिप्लॉइड है ना, क्योंकि ये सब स्पोरोफाइट का हिस्सा है. और ये अब यहां से तुम्हारा गैमेटोफाइट यहां से शुरू हो जा रहा है स्पोर से, तो इसीलिए उसको गैमेटोफाइटिक जनरेशन, हैप्लॉइड जनरेशन मान लिया. ओके, अब मेल और फीमेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स आर multiflagellate and they will move with the help of water. They will do fertilization of egg cell. Egg cell is already present here on female gametophyte. फीमेल गैमेट या फिर आपका जो कोई भी आर्चिगोनियम रहेगा वहां पे पहुंच जाएगा वो मेल गैमेट अगेन with the by swimming in the water with the help of your flagella, and it will fertilize it, female gamete, and it will produce a diploid zygote. It will produce a diploid zygote. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, ये तो आपको पता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन गए कि फ्यूज होते हैं और वो यहीं पे zygote तैयार होगा. दिस zygote इज रिटेन्ड हियर, वो यहीं पे रहेगा एंड इट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो. इट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट वहां होंगी. दैट एम्ब्रियो विल ग्रो, it will grow, it will develop, it will grow, it will develop, and then that embryo will detach. That fully formed embryo will detach, and that embryo will, on detachment, it will again fall down and it will now develop into a new sporophyte. It will develop into a sporophyte, क्योंकि देखो zygote diploid है तो embryo भी आपका पूरा diploid तैयार होगा और उसमें से फिर जो कोई भी वापस से roots आएंगे उसको stem आएंगे और उसको फिर पत्तियां आएंगी और वापस से आपकी स्पोरोफाइटिक जनरेशन शुरू हो जाएगी. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? zygote से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो विल ग्रो अप टू सम स्टेजेस, इट विल डेवलप इनटू अ मच वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड देन दैट स्ट्रक्चर विल फॉल डाउन एंड इट विल डेवलप इनटू अ न्यू स्पोरोफाइट. ओके, therefore sporophyte will be also diploid. This stage is most important here in pteridophytes. ये एक बहुत important stage थी. What? Zygote is retained, embryo is retained on female gametophyte,
एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज टुवर्ड्स सीड डेवलपमेंट। आगे चल के हम एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में ऐसे ही सीड बनाएंगे। जब आपको एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म आएगा तब मैं बताऊंगा ये चीज फिर से। तो ये जो सीड यही आपका एम्ब्रियो यहीं पे रुक रहा है, तो एक प्रकार से देखो ये एम्ब्रियो एक प्रकार का छोटा सा सीड ही हो गया। जैसे आपने मैंगो ट्री में कैसा होता, मैंगो प्लांट रहता तो उसके ऊपर फूल आते, उसका पॉलिनेशन होगा, वहीं पे फिर मैंगो का फ्रूट तैयार होगा और उसके अंदर एक सीड रहेगा, कोई रहती मैंगो की, राइट। तो कोई पूरी क्या होती, जो सीड रहता मैंगो का वो पूरी प्लांट के ऊपर जब तक पूरा डेवलप नहीं होता, एकदम अच्छे से सीड पूरा डेवलप नहीं होता मैच्योर सीड, तब तक वो झाड़ पे लगा रहता। और जब वो मैच्योर हो जाता तो उसके बाद फल पकने लगता और फल के साथ वो फ्रूट नीचे गिरता, और अगर वो सीड वहां पे इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो एक नया झाड़ आ जाएगा, वहां पर एक नया मैंगो ट्री आ जाता। करेक्ट है। सेम चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, सीड नहीं तैयार होगा। अब सीड क्यों नहीं बोलते इसको, क्योंकि सीड के स्ट्रक्चर में उसको सीड कोट रहता, उसको सीड को कवरिंग रहती, उसको कॉटिलिडॉन्स रहते, उसके अंदर स्टोर्ड फूड रहता। यहाँ पे इतनी चीजें डेवलप नहीं होंगी क्योंकि अभी ये शुरुआत है। ये एक सीड डेवलपमेंट की तरफ जाने वाली एक स्टेप है। सो दिस इज अ स्टेप। व्हाट इज दैट स्टेप? Embryo should be retained, should stay on female plant, and then it will be nourished here and it will develop into seed. But here a seed is not formed. Some stage, somewhat developed embryo is here. It will be having some mass of cells and then it will detach and then it will grow into a new spore. तो ये सीड बनाने की एक आदत की तरफ बढ़ने की एक स्टेप है। सो embryo is retained on female gametophyte and hence it is a step towards, this is a step towards seed development. It is known as seed habit. Seed habit, सीड बनाने के एक प्रकार एक तरफ एक तैयारी है ये, और इसीलिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। The phenomenon of seed habit is first observed in your pteridophytes. algae bryophytes में ये मिलता नहीं। algae में तो जाइगोट में डायरेक्टली मियोसिस हो जाता और उससे गैमेटोफाइट तैयार हो जाते वापस से, बराबर है। ब्रायोफाइट्स में जाइगोट से एम्ब्रियो बनता, लेकिन एम्ब्रियो ऊपर नहीं रुकता है, एक दो सेल्स बन गए कि तुरंत एम्ब्रियो गिर जाता और उससे स्पोरोफाइट बनना शुरू हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या करने का, एम्ब्रियो को अच्छा डेवलप करने का, रिटेन्ड एम्ब्रियो इज रिटेन्ड ऑन फीमेल गैमेटोफाइट, देयरफॉर इट कैन बी फर्दर इन फ्यूचर वी कैन यूज इट एज अ स्टेप फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। ओके, तो ये सीड हैबिट की तरफ एक आदत है जो पहली बार किसमें दिख रही थी आपको, टेरिडोफाइट्स में। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में आपको दो तीन पॉइंट्स बोलो, लिख के रखो। क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट है, नोट करो, व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। दे आर फर्स्ट vascular plants on your earth, first vascular plants on earth. They are the first cryptogamic vascular plants, or also known as vascular cryptogams. Okay, third point, they are the first plant to have true root, true stem and true leaves. True root, true stem and true leaves पहली बार आए उनको। And fourth one, these are the plants to show the step towards evolution of seed habit. They have shown the first step towards the phenomenon of evolution of seed habit. Okay, सीड तैयार करने की, और वो स्टेप क्या है, retaining the embryo on female gametophyte. रिटेनिंग मतलब रखना, उसको थोड़ी देर तक वहीं पे ग्रो करना। जैसा बच्चे को कैसा माँ के पेट में बेबी ग्रो होता और फिर बाद में उसको जन्म देती माँ, तो वो पूरा अच्छे से ग्रो हो सकता। अदरवाइज अंडे देने वाले स्पीशीज क्या करते हैं, गैमेट्स को बाहर छोड़ देते, वो वही फ्यूज होते और वही का भी डेवलप हुए तो होते, नहीं तो नहीं होते। लेकिन सीड बनाने के लिए क्या है, अगर वो बच्चा माँ के पास ही रहेगा, सीड माँ के पास ही ग्रो होगा, तो फिर वो अच्छे से उसको नरिशमेंट देंगे और एक अच्छा बेबी तैयार होगा। अदरवाइज बाहर अगर गैमेट छोड़ दिए तो पानी में गैमेट्स बह के चले जाएंगे, तो फिर वो गैमेट्स की कोई की फ्यूजन होगी, कोई की नहीं होगी, हुई तो उसका जाइगोट जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, चांसेस ऑफ लिविंग, चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम रहते। तो इसके लिए फीमेल गैमेटोफाइट पर ही उस जाइगोट का ग्रो होना, उसका एम्ब्रियो का ग्रो होना एक सीड बनाने की आदत की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। ठीक है, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ योर टेरिडोफाइट्स। इतना ही है उसके अंदर। और एक फर्क अगर देख ले तो मैंने आपको स्पोर्स के बारे में बताया था कि यहाँ पे तो स्पोर कंडीशन क्या बताया, दिस इज होमोस्पोरस कंडीशन। होमोस्पोरस कंडीशन, होमोस्पोरस कंडीशन ड्रायोप्टेरिस और एडिएंटम में दिखाई देती है, ड्रायोप्टेरिस और एडिएंटम में। लेकिन अगर हेटेरोस्पोरी की बात करें तो हेटेरोस्पोरी में क्या होता है, दो प्रकार के स्पोर्स तैयार होते हैं हेटेरोस्पोरी में। अब ये जो कंडीशन है होमोस्पोरस ड्रॉ कर लो, और क्या देखो, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल हो गई है, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। ओके, तो उसमें यहां डिप्लॉइड कहां से चालू है, जरा जाइगोट से, तो यहां से लेके हैप्लॉइड कहां तक है, ये यहां तक,
ऊपर की पूरी डिप्लॉयड लाइफ साइकिल है, जाइगोट डिप्लॉयड है और मदर सेल्स भी डिप्लॉयड है, यहां तक का डिप्लॉयड है, तो ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन हो गया, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, इट इज डिप्लॉन्टिक साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और उसके आगे का जो है हैप्लॉइड स्टेज चालू होगी और गैमेट्स तक के हैप्लॉइड स्टेज है, दिस इज गैमेटोफाइटिक जनरेशन, गैमेटोफाइटिक जनरेशन, दिस इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये कैसी लाइफ साइकिल है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, सो डिप्लॉन्टिक आदि और आदि हैप्लॉन्टिक, कैसे समझ में आ रहा क्या? ओके, अब मैं ये होमोस्पोरस की कंडीशन होगी। अब अगर हेटेरोस्पोरस की बात करें, कैसे स्पोरस? हेटेरोस्पोरस। तो हेटेरोस्पोरस में आपको क्या बोला था? टू डिफरेंट साइज्ड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, सो हेटेरोस्पोरस। अब उसमें क्या आ जाता है लाइफ साइकिल में? स्पोरोफिल्स जो रहते वो दो प्रकार के रहते, माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स, बराबर है। तो ये हो गए फॉर एग्जांपल माइक्रो वाले ऊपर और नीचे मेगा वाले, सो माइक्रो स्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स, सच टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया बेयरिंग लीव्स आर प्रोड्यूस्ड, जिनके अंदर दो अलग अलग साइज के स्पोर्स तैयार होंगे। तो फिर उसके अंदर भी माइक्रोस्पोर की मदर सेल्स रहेंगी और मेगास्पोर के भी मदर सेल्स रहेंगे। इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स रहेंगे, इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स रहेंगे। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विल गिव राइज टू माइक्रोस्पोर्स बाय मियोसिस एंड मेगास्पोर मदर सेल्स विल गिव राइज टू मेगास्पोर्स बाय मियोसिस। बाकी सब वही है, मियोसिस ही होगा, लेकिन बस क्या रहेगा इधर फर्क, ये छोटे छोटे स्पोर्स रहेंगे और ये थोड़े से साइज में बड़े स्पोर्स रहेंगे। माइक्रो छोटे, मैक्रो मेगा बड़े स्पोर्स में। अभी होमोस्पोरस में सब सेम साइज के रहते हैं, यहाँ पे साइज बदल जाएगा बस। ओके, फर्क देखो क्या होता है वापस से, माइक्रोस्पोर्स जो रहते हैं जब वो आगे जाके जर्मिनेट होंगे, माइक्रोस्पोर्स जब वो आगे जाके जर्मिनेट होंगे उनसे प्रोथैलस तो बनेगा, लेकिन उनके प्रोथैलस पर सिर्फ मेल स्ट्रक्चर्स आएंगे, मतलब तुम्हारे मेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा उससे, मेल गैमेटोफाइट विल डेवलप फ्रॉम माइक्रोस्पोर। ठीक है, और उसके ऊपर भी आएगा बाकी का, एंथेरिडियम आएगा तुम्हारा, एंथेरिडियम में मेल गैमेट्स, यहां तक सेम है। और जो तुम्हारा फीमेल है मतलब क्या है? मेगास्पोर। तो मेगास्पोर से क्या होगा? मेगास्पोर विल ऑल्सो जर्मिनेट, मेगास्पोर विल जर्मिनेट, इट विल प्रोड्यूस अनदर प्रोथैलस, वो अलग से प्रोथैलस बनाएगा। दैट प्रोथैलस विल बी हैविंग योर आर फीमेल गैमेटोफाइट, इट विल ग्रो एज फीमेल गैमेटोफाइट। दैट फीमेल गैमेटोफाइट विल प्रोड्यूस योर आर्चिगोनिया, उसके ऊपर ऐसा रहेगा और उसके ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट आएगा जिसके अंदर एग आएगा, इसके अंदर एग। बाकी की स्टेप सेम, एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा और तुम्हारा जाइगोट तैयार होगा, एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा और तुम्हारा जाइगोट। ये इधर लिखा था ना, उसको बस नीचे लिखा मैंने अलग से। फर्क क्या है ध्यान में आ रहा क्या? होमोस्पोरस में एक ही स्पोर रहेगा, एक ही साइज के स्पोर रहेंगे, तो मेल फीमेल गैमेट जो रहेंगे वो एक ही प्लांट बॉडी पे बनेंगे। ऐसे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे, वहां पे दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स एक ही प्लांट बॉडी में होंगे। मतलब क्या है, वो जो गैमेट्स थे, वो जो प्लांट्स थे वो मोनोशियस थे। होमोस्पोरस कंडीशन रिप्रेजेंट्स मोनोशियस कंडीशन। मोनो मतलब सिंगल, इशियस मतलब बॉडी, तो एक ही बॉडी पे दोनों सेक्स ऑर्गन, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन, वो होमोस्पोरस कंडीशन में हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा? मेल सेक्स ऑर्गन इज प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट बॉडी, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट बॉडी, दोनों अलग अलग बॉडी पे तैयार हो रहे हैं। तो ये कैसी कंडीशन है? ये तुम्हारी डायोशियस कंडीशन है। व्हाट इज डायोशियस कंडीशन? डायो मतलब टू, इशियस मतलब बॉडीज, सो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन टू डिफरेंट बॉडीज जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन में मेल बॉडी अलग है, उसमें मेल गैमेट्स बनते हैं, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट्स बनते हैं, तो यहाँ पे वही होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि दो प्रकार के यहाँ पे स्पोर्स तैयार होंगे। और ये जो हेटेरोस्पोरी कंडीशन है, दिस इज हेटेरोस्पोरी। व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोस्पोरी? टू डिफरेंट साइज्ड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया
from spore mother cells. So this is also an important step because it will also help in seed formation. ये आपको एंजियोस्पर्म में काम में आएगा. तो ये भी एक हेटेरोस्पोरी is also an important step for seed habit. It is also an important step for seed habit क्योंकि सीड बनाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, पोलन ग्रेन्स और एक सेल का फ्यूजन करके आपको सीड बन जाइगोट बनेगा, फिर उसका एम्ब्रियो बनेगा और सीड बनेगा. तो पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर रहते और एक सेल मतलब मेगास्पोर रहता. तो दो अलग अलग स्पोर्स का वहां पे फ्यूजन होकर आपको सीड बनेगा. यहाँ पे क्या है देखो, हेटेरोस्पोरी भी क्या है, एक प्रकार से सीड बनाने के लिए एक स्टेप आगे जाएंगे. अभी यहाँ पे सीड नहीं बनेगा, अभी इनकी फ्यूजन से क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा which will form antheridium and archegonium that will produce sperms, multiflagellate sperms and non-motile eggs which will fuse by water with the help of water to form zygote. Zygote will develop into embryo which is again retained here. यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट में रहेगा, वो रुकेगा and then it will grow into again sporophyte after detaching from this your archegonium and it will develop into again new sporophyte. फिर स्पोरोफाइट पे दो प्रकार की पत्तियां आएंगी. ये तो दो रहेंगी नॉर्मल लीव्स, ये दो रहेंगी स्पोरो बेयरिंग लीव्स, स्पोरेंजिया बेयरिंग लीव्स. बाकी की प्रोसेस वही चलते हैं. मतलब दो अलग अलग मैंने आपको बताया, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल और हेटेरोस्पोरस की लाइफ साइकिल. कंफ्यूज नहीं होने का. आपको फोटोज भी मैं दे रहा था बीच बीच में, तो आप फोटोज को भी एक बार देख लो. ये जो फोटोज आ रहे थे आपके सामने, ये फोटोज के अंदर सेम चीज बता रही है. एक बार एक लॉजिक समझ लो बस. स्पोरोफाइट आएंगे, उस पर स्पोर्स आएंगे, स्पोर्स डिवाइड होके मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, उनसे हैप्लोइड गैमेटोफाइट बनेंगे. गैमेटोफाइट या तो प्रोटोनीमा स्टेज बनाएगा, याद है क्या, प्रोटोनीमा स्टेज ब्रायोफाइट्स में बना रहा था, या प्रोटोनीमा से लीफी स्टेज बनेगी. दो स्टेजेस थी उधर, राइट. और फिर वो लीफी स्टेज पे फिर आएंगे गैमेट्स, गैमेट बेयरिंग स्ट्रक्चर्स. ये गैमेट बेयरिंग स्ट्रक्चर इधर प्रोटोनीमा नहीं बनता, इधर प्रोथैलस बनता. प्रोटोनीमा स्टेज इज द स्टेज इन ब्रायोफाइट्स, लीफी स्टेज इज द स्टेज ऑफ ब्रायोफाइट्स. लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोथैलस इज द स्मॉल स्टेज, इट इज फ्री लिविंग स्टेज, इट इज फ्री लिविंग स्टेज. वहां पे स्पोरोफाइट क्या था, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. यहाँ पे स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग है, गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग है. इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट. इट इज ग्रीन, इट इज ऑल्सो ग्रीन. ओके, इट इज नॉट टोटली डिपेंडेंट. ओके, इट इज नॉट टोटली डिपेंडेंट. लेकिन जब तक स्पोर्स नहीं बनेंगे तब तक गैमेटोफाइट नहीं बनेगा. तो इसके लिए फिर यहाँ पे डोमिनेंट फेस कौन है, मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, इसकी ज्यादा कुछ वजूद है क्या, इसका खुद का, इसको कोई ज्यादा स्ट्रक्चर्स है क्या. सो गैमेटोफाइट ज्यादा डोमिनेंट नहीं है. Here sporophyte is more dominant than gametophyte. जबकि ब्रायोफाइट्स में क्या था, गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट एंड स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट. यहाँ पे स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट एंड गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट. आपको डिस्टिंग्विश का टेबल आ रहा है, फोटो आ रही है, ब्रायोफाइट वर्सेस टेरिडोफाइट. तो गैमेटोफाइट दोनों के कंपेयर करा ले. ब्रायोफाइट्स में क्या है, द गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, फ्री लिविंग and it produces male sex organs, antheridium and archegonium, which produces male and female sex organs, sperms and eggs. Okay, जबकि स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट इज dependent on gametophyte, it is produced on gametophyte, it is not free living, it may be partially or totally dependent. partially dependent कैसा, फर्न्स में था, अपने मॉजेस में था, याद है कि आपका फ्यूनेरिया, उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन रहता तो खुद का खुद बना लेता हो फूड. लेकिन मर्केंशिया वगैरह में तो टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट. इसी तरीके से टेरिडोफाइट्स की अगर बात करें तो टेरिडोफाइट्स का जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट इज प्रोथैलस, इट इज फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट एंड ग्रीन, बट इट इज इनकॉन्स्पिक्यूअस. आपको एनसीईआरटी वर्ड दिया लास्ट टाइम में. इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब ज्यादा दिखावट उसमें आकर्षक ऐसा नहीं रहेगा, एकदम इरेगुलर. इनकॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब दिखने जैसा, देखने लायक, सुंदर, ये ज्यादा सुंदर नहीं रहता. Inconspicuous, free living and multicellular. Okay, and it is photosynthetic. But it male sporophyte in pteridophytes, it is dominant, independent, and it is having main face. It will be having main body, diplontic. Okay, gametophyte is always separate. It is different. समझ में लाइफ साइकिल क्या है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइफ साइकिल ऑफ योर टेरिडोफाइट्स. देयर आर ओनली 4 क्लासेस ऑफ योर टेरिडोफाइट्स. इस हमने फोटो आ रहा है, 4 क्लासेस और उनके 4 एग्जांपल्स आपको मैंने नोट्स में भी दिए हुए. लर्न करने के बस 4 एग्जांपल्स और 4 आपके सामने जो आ रहा है. सो व्हाट आर दी 4 क्लासेस ऑफ योर टेरिडोफाइट्स? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा. ये 4 क्लासेस है. अपने इनका डिटेल में देखने का नहीं है, टेंशन मत लो. सो ये मैच द फॉलोइंग के लिए आपको नीट में पूछ सकते हैं, इसके लिए लिख के रखो. क्लास 1 साइलोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, तीसरा स्पिनोप्सिडा और चौथा
तुम्हारा टेरोप्सिडा है। 4 1 2 3 4। अब ये क्या है, 4 प्रकार के क्यों है टेरिडोफाइट्स, क्योंकि पहले वाले जो टेरिडोफाइट्स है, दीज आर प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स आल्सो नोन एज प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स। दीज आर कॉल्ड क्लब मॉजेस। देखो मॉज नाम आ रहा, लेकिन ये कोई ब्रायोफाइट नहीं है। क्लब मॉजेस, इनका नाम मॉज रखा है लेकिन ये ब्रायोफाइट नहीं है, ये मिसनोमर है, मतलब मैच नहीं हो रहा नाम, लेकिन ये पुराने लोगों ने नाम रखा है क्लब मॉजेस। कैसे दिखते हैं आपके सामने फोटो आएगी अभी एग्जांपल के साथ। स्पिनोप्सिडा, these include horsetails also known as scoring rushes। और चौथा है टेरोप्सिडा, these are the true ferns, मतलब एक्चुअल ट्रू, जिनमें सब अपन ने जो देखे नेफ्रोलेपिस वो यहाँ पे आएगा। ये है आपके 4 क्लासेस और उनके 4 नाम। ओके, अब इसके बाद इनको याद कैसे रखने का, तो आपको 4 नाम याद ही करना पड़ेंगे। साइलोलाइकोस्पिनोटेरो, ओके, स्पिनोटेरो। अब इनके एग्जांपल्स क्या है, साइलोप्सिडा में एक ही आता तुम्हारा साइलोटम, और इसका एक और था दोस्त राइनिया, जो अब एक्सटिंक्ट है। राइनिया एक्सटिंक्ट हो गया है, ये अब इस दुनिया में नहीं मिलता, ठीक है। फॉसिल्स में आप उसको स्टडी कर सकते हैं, अदर साइलोटम इज द ओनली लिव। इसी तरीके से इसके अंदर लाइकोस्पिडा में आएंगे लाइकोपोडियम। आपको फोटोज आ रही है, आप साइड बाय साइड फोटोज देखते चलो। साइलोटम का आया था, राइनिया का एक फोटो आया था, प्लस लाइकोपोडियम, ओके। इसी तरीके से आपका सेलाजिनेला मतलब आपकी संजीवनी बूटी, ओके, BOOTI। देन हॉर्सटेल्स में आपके आएंगे इक्वेसेटम, ये भी अकेला लिविंग है, इसके बाकी के सारे रिलेटिव्स मर गए मतलब एक्सटिंक्ट हो गए, तो अकेला लिविंग ऐसा एक फाइलम है अपने, लिविंग एक क्लास है, इसके अंदर का सब क्लास। स्पिनोप्सिडा में एक आता इक्विसिटम और इसके कुछ बंधु, और इनको बोलते हैं हॉर्सटेल्स, क्योंकि देखो आपको फोटो पता है, हॉर्स के दुमचे के जैसे दिखाई देते, झाड़ू जैसे दिखाई देते। सूखने के बाद अगर इनकी पत्तियों को लिए तो इनकी पत्तियों पे एक सिलिका की कवरिंग रहती, ड्यू टू विच यू कैन यूज इट फॉर स्कोरिंग योर यूटेंसिल्स। बर्तन घसने की घासनी रहती ना अपनी, स्क्रॉच ब्राइट वगैरह क्या रहते वो, सो बर्तन घसने के जो रहते, तो वैसा इसको लिटरली यूज करते लोग इक्विसेटम को। तो सूखे वाली काढ़ों से बर्तन अच्छे घसे जाते इससे, सो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, स्कोरिंग रशेस। स्कोरिंग मतलब बर्तन घसने का काम, स्कोरिंग, ओके। रशेस मतलब वो दिख रहे हैं, जो झाड़ू जैसे दिख रहा है आपको, खरेटे जैसे दिख रहे हैं। सो देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको मिलेगा भी ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड स्कोरिंग रशेस। सो योर स्पिनोप्सिडा, मेंबर्स ऑफ स्पिनोप्सिडा, बिकॉज दे आर लाइक हॉर्सटेल्स ड्यू टू अपीयरेंस, due to presence of branched and leaves arranged in your circles, okay, circular pattern में, mosaic pattern में leaves है। example is equiseta। lastly true ferns में तुम्हारे नेफ्रोलेपिस, okay, salvinia, azolla, okay, these are the examples of your true ferns, that is your Pteropsida, Adiantum, Pteris, Dryopteris, Adiantum, okay, so these are the examples of your Pteropsida। और इतने आपको लर्न करने के, अब इसमें कोई मैंने फॉर्मूला नहीं बनाया, लेकिन क्या फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं। 4 क्लासेस, साइलो याद रहने को इजी, साइलो, ओके। वैसे ही लाइको नाम याद रहता, लाइकोसेला ऐसा याद रखो, या लक्की सीता ऐसा याद रखो कुछ भी, या लक्की सीता कौन है, संजीवनी बूटी से याद रहेगा, सीता से रिलेटेड है ना किस्सा रामायण का, संजीवनी बूटी लक्ष्मण के लिए लाए थे, आई नो दैट, बट सीता ऐसे स्पेलिंग में सेलाजिनेला, ओके। वैसे स्पिनो, ये स्पिनो मतलब स्पिन, बर्तन में घसते टाइम स्पिन करना पड़ता है ना बर्तन को, या फिर जो घसने रहती है उसको, तो स्कोरिंग रशेस। ये तो इक्विसेटम, घोड़े का नाम है इक्वस, उस पे से इक्विसेटम नाम आया वाला है, ओके। इक्विसेटम घोड़े जैसे दिखते, तो सब मीनिंग्स देखो उनके कैसे जुड़ रहे हैं। वैसे टेरॉन मतलब फेदर, ओके। तो नेफ्रोलेपिस को दोनों तरफ पत्तियां रहती, तो नेफ्रोलेपिस। टेरिस वो भी वैसे, ड्रायोप्टेरिस, ओके। टेरो वर्ड आ रहा देखो इसमें, टेरो, ओके। बाकी एडियांटम, ये वगैरह इसके एग्जांपल्स, ओके। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर टेरोप्सिड साइलोटम, टेरिडोफाइट्स।
फाइनली देर आर ओनली फ्यू यूजेस. फॉर एग्जाम्पल अभी बताया आपको, इकोनॉमिक यूजेस वगैरह क्या आपके सामने आ रहे हैं, रीड कर लो, ज्यादा कोई बहुत डिटेल में नहीं जानेगा, इसके कोई मेजर यूजेस नहीं है. कुछ मेडिसिन बोल के यूज कर सकते हैं, किसी को अपन देर फूड बोल के यूज कर सकते हैं. एजोला जो है इसके अंदर एक बहुत फेमस है. एजोला के लीव्स के अंदर एनाबिना नाम की एक सायानोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन अल्गी का एक एसोसिएशन दिखाई देता. ब्लू ग्रीन अल्गी, एजोला और एनाबिना. आपको लीव्स का टीएस बता रहा है, तो देखो उसकी पत्तियां ऐसी है. ओके, वो पत्तियों के अंदर नीचे रूट से उसको, तो ये जो पत्ती है, पत्ती के अंदर यहाँ पे एनाबिना की कॉलोनीज रहती. एनाबिना इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है एजोला. प्लस इसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता. सो ये जो एजोला की ग्रोथ है, एजोला को फॉडर बोल के यूज करते हैं. और एजोला फार्मिंग अगर आपने सर्च किए, गूगल किए, तो आपको दिखाई देगा, बहुत फेमस चलता. एजोला को पानी के ऊपर ग्रो करते और वो जानवरों को देने से उनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्न है ये अपना एजोला. इट्स अ फर्न. एमसीक्यू पूछते हैं एजोला, अपने दिमाग में आता अलगी है. अलगी नहीं है वो, इट इज अ फर्न विच इज यूज्ड एज फॉडर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ, कौन रहता है उसके पत्तियों में, द कॉलोनीज ऑफ एनाबिना विच इज योर सायानोबैक्टीरिया. ओके, दिस एसोसिएशन इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन. कौन से एसोसिएशन? सिम्बायोटिक एसोसिएशन. मैंने अपने खेत पर भी इसकी खेती किया था. एजोला फार्मिंग मैंने सक्सेसफुली किया हुआ है. ओके, तो अपने खेत के अंदर मैंने ऐसा पानी के ट्रेज वगैरह बनाए थे, उसके ऊपर एजोला लाकर डाल दिया था, वो ग्रो होते थे. तो रोज आराम से मुझे दो तीन जानवरों के हिसाब से, मैंने छोटा स्केल पे किया था, तो आराम से 2-3 जानवरों के लिए मुझे चारा उसमें से अच्छे से मिल जाता था. प्लस इतना हेल्दी रहता है क्योंकि फ्रेश लीव्स रहते, प्लस बहुत हेल्दी रहते हैं. उसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह कंटेंट, आयरन वगैरह कंटेंट बहुत ज्यादा रहता. ज्यादा जगह भी नहीं लगती, पानी में ही ग्रो होते, मिट्टी वगैरह ज्यादा नहीं लगती उसको. ठीक है, सिंपली काउ डंग यूज करके, गोबर वगैरह यूज करके उसको ग्रो कर सकते. सो एजोला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्न दैट कैन बी यूज्ड एज फॉडर. ओके, इसी तरीके से आपके जो अभी बताया, इक्विसिटम इज यूज्ड एज स्कोरिंग रश बिकॉज इट इज यूज्ड टू क्लीन द यूटेंसिल्स, स्कोरिंग ऑफ यूटेंसिल्स जस्ट लाइक स्क्रॉच ब्राइट. ओके, साइलोटम, लाइकोपोडियम इज ऑर्नामेंटल, दिख रहा है इतना सुंदर. प्लीज, ओके, सम हैव सेलेजिनेला हैज योर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, तो उसको मेडिसिनल यूजेस है आयुर्वेद वगैरह के अंदर. So there are so many uses, but mainly they are the important from the point of view of your evolution of plants because they have shown the presence of vascular bundle. Okay, इसके साथ ही आप एंजाइटी ब्रीडिंग करेंगे तो सॉइल बाइंडर्स, मतलब उनके रूट्स मिट्टी पकड़ के रखते तो मिट्टी बह के नहीं जाती, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते. ये उसके यूजेस रहे. Okay, so that's all about your pteridophytes, their structure, classification, etc., and their economic and ecological importance. Lastly, we are remaining with only gymnosperms and angiosperms. So here it's done. We will see gymnosperms in our next lecture.